Today we will be starting the chapter states of matter. The chapter states of matter and bonding, they go hand in hand. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ionic compounds जो भी हैं, right, they exist in, यहाँ पर they exist in the solid state because they have a high melting and boiling point, and they exist in the lattice state. Now, similarly, the metals, they also exist in the solid state except for the mercury, and they also exist in the lattice state. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर हम ज़्यादातर देखेंगे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि कोवलेंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं आपके या तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर उनका स्टेट मैटर करता है। ठीक है, जो भी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके ऊपर उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बेस करता है और उसके ऊपर उनका स्टेट बेस करता है। और अगर जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली दे विल बी हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे विल बी existing in the solid states. तो ये आपका एक part of this chapter. One part of this chapter is that different substances, they exist in different state. But basically, what are the states? There are three states. We know that there are a gaseous state, there is a gas, there is a liquid state, and there is a solid state. Solid state की तो बात मैंने आपको पहले बता दी, metals and ionic compound they exist in solid state. Liquid का भी we have, and लेट्स स्टार्ट विद द गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट के अंदर क्या है, किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज होती हैं, क्या उनके अंदर पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्सेस होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस फर्स्ट, एंड देन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद पर्टिकुलरली कुछ सब्सटेंसेस की बात करेंगे, सिंपल सब्सटेंसेस एंड कोवलेंट जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। इट विल गो हैंड इन हैंड विद द चैप्टर बॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हम बॉन्डिंग के चैप्टर से के references देंगे. Now, when we talk about the states of matter, we know that this matter exists in three states. It exists in the gaseous state, liquid state, and solid or the crystalline state. Solid lattice form में होता है, crystalline shape में होता है, liquid there the particles are arranged in the disorderly manner, and gases में जो particles they are very far away, they are far apart. So this is a basic understanding जो हमारे पास एक बेसिक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेट, दैट इज द गैसियस स्टेट। now this is again, we are already aware of these general properties of the substances which exist in the gaseous state. गैस में जो होते हैं उनकी ये जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। आई एम जस्ट रीडिंग आउट, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस यू ऑलरेडी नो। गैसेस कैन बी एक्सपैंडेड इनफाइनाइटली, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो जितने एनर्जाइज होंगे उतने ही, जितनी भी स्पेस उनको मिलेगी वो उतना ही एक्सपैंड करेंगे। सो दे एक्सपैंड infinitively. ठीक है, infinitively. Therefore, gas can fill the container and take up the volume and the shape of the container. तो जितनी space उनको मिलेगी तो वो उतना ही expand कर सकते हैं जब आप उनको ज़्यादा energize करें, या उस particular अपनी kinetic energy जो भी वो possess करें उसके साथ, उसके हिसाब से भी वो container में spread out हो सकते हैं, diffuse हो सकते हैं। तो gases, they mixes and they diffuses well and rapidly, बहुत quickly, rapidly diffuse करते हैं। What does diffusion? Diffusion is a spontaneous process where the particles of different gases, they diffuses, or the gas diffuse with the air particles. Gases have much lower density than the liquid and solid because number of particles are definitely less, so they have the lower density. There is lot of free spaces in the gas because they are widely spread about, random movement होता है, randomly arranged होता है, so there are lot of free spaces between the gas particles, and because of the spaces they are compressible, उनको आप compress कर सकते हैं। तो ये कुछ general properties हमारी, we already are aware of these properties. Let's proceed. Let's see what else do they have. Now gas, there are some more general properties mentioned here. Now gas molecule travel in random path, as I told you that they randomly move. They move in all direction and collide with one another. And while they're moving, they're colliding with each other. Okay? And with the walls of the container, they're colliding each other as well as they're colliding with the container's wall. So when they collide with the wall of the container, just फ्रीक्वेंसी से, जिस प्रेशर से, तो आप जिस प्रेशर से गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल को हिट करते हैं वो हम उसको गैस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, द गैस exerts a pressure which is expressed in, it's a pressure, it's a force per unit area, the force with which it hits the wall of the container, that is basically known as pressure. It's a force with which the gas particles, they hit the wall
of the container, that's the pressure. It is expressed in dynes per cm cube or atmosphere or mm per hg mercury. Okay, or 1 atmosphere. This is a conversion they have mentioned. Now gases have a volume that is expressed in जो volume of the gas जो occupy करती है gas, उसका unit जो होता है या liter होता है या cm cube होता है. ठीक है, cubic meter. So 1 cm cube is equal to 1 ml, right? The temperature involved in the gas equation. अब हम आगे जाके gas equation की बात करेंगे, ideal gas equation की बात करेंगे. वहां पर absolute temperature लिया जाता है और absolute temperature is basically it's 273 Kelvin. ठीक है, let's proceed further. आगे बढ़ते हैं. Let's see what else do we have. So this is a general understanding of the general property of the gas. Now comes देर आइडियल गैसेस. जो भी गैसेस होती हैं उनके उनको बेस उनके ऊपर so I repeat, ideal gases are those gases which can be explained. उनकी जो भी arrangement है, जो भी उनके बीच में forces हैं, वो एक theory के basis पे explain किया जा सकता है. And that theory जो कि gases की particles की kinetic energy को, उनके बीच के forces को और उनके arrangement को, जो भी उनके movement को, उनकी volume को, ठीक है, जो भी explain करे, वो kinetic molecular theory कहलाती है. Kinetic molecular theory actually explain the ideal gases, and the ideal gases are also those which follow the gas laws. Gas laws are those laws, there are few gas laws. Say for example, you have Boyle's law. Abhi hum padhenge. I'm sure you must have studied this in physics as well. And another law is your Charles law, and the rest of the laws are Gaius-Lucic law and Avogadro's law. तो ये कुछ गैस लॉज हैं जो कि आइडल गैस फॉलो करती हैं. ठीक है, आइडल गैस के ऑपोजिट रियल गैसेस होती हैं. अब हम आइडल गैसेस वर्सेस रियल गैसेस पढ़ेंगे. रियल गैसेस जो होती हैं वो कुछ सम ऑफ द पॉइंटर्स ऑफ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, कुछ ये बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ये एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है. दिस इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस. ठीक है, तो ये एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. तो कुछ लॉज या कुछ थ्योरी के कुछ पॉइंटर्स जो कि एज्यूम्ड हैं, वो नॉर्मली गैसेस उन एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती, वो कहलाती हैं आपकी रियल गैसेस. रियल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच डू नॉट blindly follow the ideal kinetic molecular theory. वो कुछ assumptions को negate करती हैं, और ये real gases जो हैं ये इन laws को भी follow नहीं करती. ठीक है, तो real gases are basically the gases which do not follow the kinetic molecular theory to some extent and do not follow these laws. So we will be studying what are ideal gases and what are the real gases, what are the difference between ideal and real gases, और उनकी कैलकुलेशंस फिर किस तरह से डिफर करती हैं उनकी, अगर हमें वॉल्यूम या अदरवाइज कैलकुलेट करना है. ठीक है, वैसे तो हमें सिर्फ आइडियल गैस की ही कैलकुलेशंस करनी होंगी. आइडियल गैस की वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसका गैस का MR एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज हमें आइडियल गैस के ही अराउंड कैलकुलेशंस करनी है इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सेज, जो कि आइडियल गैस फॉलो करती हैं. So these are the pointers which we already know. The point number 1, the kinetic molecular theory explains the behavior of the gas according to the ideal gas law. मैंने कहा आपको कि ideal gases जो होती हैं वो इस थ्योरी के बेसिस पर आप उन ideal gases को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनका नेचर क्या है, उनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है. ठीक है, तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है आइडियल गैसेस का नेचर और प्रॉपर्टीज को. और अब आइडियल गैसेस वो होती हैं जो कि आइडियल गैस लॉ को फॉलो करें. ठीक है, अच्छा, अब कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, गैसेस आर कंपोज. अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि ऑल द गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स दे कैन बी एटम्स और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स. तो इफ आई हैव अ नाइट्रोजन, so it will be comprised of, or if I have a neon, then this is made up of an atom because it is monatomic. Or if I have a nitrogen, or if I have a carbon dioxide, then they will be comprised of the particles which are basically molecules. This is in our understanding. The total volume of which is very small. अभी कहते हैं कि particles की तो बनी होती है, लेकिन गैस की जो वॉल्यूम होती है ना, वो उसके अंदर बिल्कुल negligible होती है. It's nearly next to zero in relation to the volume of the space in the molecule. अब ये किससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो गैस की जो वॉल्यूम है, ओवरऑल वॉल्यूम है, और जो पार्टिकल्स की वॉल्यूम है,
ठीक है। इनकी वॉल्यूम, पार्टिकल्स की वॉल्यूम इतनी कम है कि उसको आप कंसिडर कर सकते हैं नेग्लिजिबल, बिकॉज जितनी स्पेस जिसमें वो गैस स्प्रेड है और जो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है। दिस इज सेड बाय, this is what kinetic molecular theory tells about the ideal gas. Now coming to the third point, gas molecule exert neither attraction nor repulsion. अब हमारी रियल गैसेस जो होंगी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को निगेट करेंगी। ठीक है, इसको निगेट करती हैं। ये कहती हैं कि इन पार्टिकल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ऐसा तो हमने बॉन्डिंग चैप्टर में भी नहीं पढ़ा। हमने कहा था कि अगर मीथेन गैस है तो मीथेन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर, दे विल बी हैविंग वीक वैन डर वाल्स फोर्स, बट दे सेइंग दैट देयर इज नाइदर अट्रैक्शन। तो ये दिस इज एन एजम्पशन, ये एजम्पशन है जो कि हम कहते हैं कि ये एजम्पशन आपकी आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, लेकिन रियल गैसेस इसको फॉलो नहीं करती। ये एक एजम्पशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारी रियल गैसेस निगेट करेंगी। द पार्टिकल एग्जिबिट कंटिन्यूअस मूवमेंट। ठीक है, ये हम रियल गैसेस भी फॉलो करती हैं कि हाँ उनके बीच में रैंडम मूवमेंट होता है, और रैंडम मूवमेंट उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं उसके हिसाब से उनका मूवमेंट होता है। आप पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स को एनर्जी दें, बाहर से टेम्परेचर दें तो वो एनर्जाइज होंगे, तो उनका मूवमेंट फास्टर होगा। सो वी डू फॉलो, इवन द रियल गैसेस फॉलो दिस। तो सिर्फ जो निगेट करती हैं अब तक ये करती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट सेज दैट द मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट परफेक्ट इलास्टिसिटी। इसको भी रियल गैसेस निगेट करेंगी। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू बम्प इनटू ईच अदर, तो देयर इज नो लॉस ऑफ स्पीड और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे दो पार्टिकल्स, ये इलास्टिक इनकी कोलिजन होगा, कि दैट मीन्स जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो ना तो इनकी स्पीड लॉस होगी ना इनका एनर्जी लॉस होगा। तो ये अगेन एजम्पशन है जो कि रियल गैस फॉलो नहीं करेंगी। तो रियल गैस पॉइंट नंबर 3 को फॉलो नहीं करेंगी कि इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, और ये कहती हैं कि जब भी कोलिजन होगा देयर बी लॉस ऑफ एनर्जी, और उनकी अपनी स्पीड जो होगी वो चाहे वो आपस में कोलाइड करें चाहे वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करें, लेकिन कोलिजन के साथ साथ एनर्जी लॉस भी होगा और स्पीड लॉस भी होगा। ठीक है, तो ये these are few points which states the kinetic molecular theory. Now going further, the ideal gas is a gas. अब ये आगे बता रहे हैं कि ideal gas क्या है। Ideal gas is a gas where is no intermolecular interaction. This is point number 3. Exist and collisions are perfectly elastic. तो ये point number 5. तो अब बाकी सब चीजें तो बाकी सब points तो common है between ideal gas and the real gas. Only these two points are followed by the ideal gases only, कि इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्सेस नहीं है, कोई रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, और परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। दैट मींस कोई एनर्जी लॉस नहीं होता जब भी कोलिजन हो बिटवीन द पार्टिकल्स और द वर्ल्ड्स। और दूसरा जो है वो आइडियल गैसेस जो होती हैं, दे फॉलो, they are derived by can be described by the general ideal gas law. जनरल गैस लॉ जो होता है विच इज बेसिकली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये आपका गैस लॉ कहलाता है। दिस इज बेसिकली योर आइडियल गैस लॉ। ये डिराइव किया हुआ है फ्रॉम बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल-यूजेक्स लॉ। ये 3 लॉ हैं, इनको कंबाइन करके आपका गैस लॉ आता है विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस लॉ को फॉलो करती हैं आइडियल गैसेस। तो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैसेस। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, और रियल गैसेस दे डोंट फॉलो दीज पॉइंट। रियल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच डू नॉट। ये तो एजम्पशंस हैं, ऊपर वाला पॉइंट तो एजम्पशन है, और नीचे वाला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि ये अगर आपको प्रेशर निकालना हो आइडियल गैस का, या वॉल्यूम निकालनी हो, या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो हम इसको ये लॉ फॉलो करेंगे, एंड वी कैन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी गिवन टू अस। तो एक अननोन फैक्ट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द आइडियल गैस लॉ व्हिच इज दिस। एंड डेफिनेटली द रियल गैसेस दे डू नॉट फॉलो दिस, दे डू नॉट फॉलो दिस। ठीक है, ये इसके ऊपर रियल गैसेस के ऊपर ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन सिर्फ आइडियल गैसेस के की करेंगे यूजिंग दिस लॉ। रियल गैसेस की सिर्फ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लेकिन कोई कैलकुलेशन नहीं होगी रियल गैसेस के हवाले से। फाइन, मूविंग अहेड।
Now we are talking about the different laws, और इन laws को हम combine करके we are going to form a ideal gas law. Now let's have a understanding of what is Boyle's law, what is Charles law, and what is Gay-Lussac law, ताकि इनको combine करके हम ideal gas law बनाएं और उसके ऊपर हम numericals करें ideal gas की pressure, volume, moles वगैरह निकालने के लिए. So let's have a recap. What is a Boyle's law? So Boyle's law states that they don't ask you the definition, but आपको इसका formula, इसकी calculations आनी चाहिए using this law. So the Boyle's law states that the volume and the pressure of a given mass of the gas is inversely proportional. कि pressure जो होता है वो inversely proportional to volume होगा. जब आप pressure को increase करेंगे, अगर आप pressure को increase कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी. यहाँ पर आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, आपने प्रेशराइज किया इन पार्टिकल्स तो वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो गई. और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर आपने डिक्रीज किया, ज्यादा स्पेस दिया, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. तो बॉयल्स लॉ कह रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो उसकी वजह से अगर जो है हम वी कैन मॉडिफाई द लॉ एज पी इज इक्वल टू के ओवर बी. के इज बेसिकली योर कांस्टेंट, और उससे हमने डिराइव किया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. कि अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली एक प्रेशर पे एक वॉल्यूम है, और अगर हमने प्रेशर मॉडिफाई करा, सेकेंड सिनेरियो की वॉल्यूम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या अगर आपको एक सिनेरियो का प्रेशर, वॉल्यूम और दूसरे सिनेरियो की वॉल्यूम पता है, तो हम दूसरे सिनेरियो का प्रेशर भी डिराइव कर सकते हैं. P is for pressure, K is for constant, and V is the volume, right? So these are basically this is basically your Boyle's law. ठीक है, ये आपका Boyle's law हो गया. इसी तरह से तो Boyle's law क्या है? Boyle's law is pressure is inversely proportional to the volume. Now comes your Charles law. Now Charles law states that the Charles law क्या कहता है? The Charles law states that the volume and the absolute temperature, the volume and the temperature of a given mass of a gas at a constant pressure. अगर pressure आपके पास constant है, pressure अगर constant है, तो उस constant pressure के ऊपर ये क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो इट्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर होगा उतना वॉल्यूम होगा. ठीक है, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे गैस पार्टिकल्स का, उतना एनर्जाइज होंगे, उतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के वी कैन से V इज इक्वल टू KT. अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, इसका टेम्परेचर ये टेम्परेचर T1 है, तो इस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो है उन पार्टिकल्स की कम है, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. जब आप टेम्परेचर या हीट को ज्यादा बढ़ाएंगे, तो द पार्टिकल्स के एनर्जाइज हो जाएंगे. जब एनर्जाइज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली देयर वॉल्यूम विल इंक्रीज. सो वी कैन से दैट प्रोपोर्शनल, जितना टेम्परेचर है उसी के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होगी, या वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा. ठीक है, टेम्परेचर इन ऑल दीज लॉज वी ऑलवेज टेक इन केल्विन. दिस इज वन थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर. आपके यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से होंगे, वो मैं यूनिट्स अभी आपको बताऊंगी जब हम गैस लॉ की बात करेंगे. ठीक है, आइडियल गैस लॉ की बात करेंगे, तो उस गैस लॉ के अंदर प्रेशर का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, वॉल्यूम का भी होगा, टेम्परेचर का भी होगा. तो टेम्परेचर का याद रखिए कि टेम्परेचर का वी आर गोइंग टू हैव अ केल्विन. ठीक है, तो इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ किया था. बॉयल्स लॉ हम मेजर कर रहे हैं एट द कांस्टेंट pressure against volume. ठीक है, अगर pressure of the gas increases the volume decreases and vice versa. This is again at the constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, और इसी तरह से चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी. देन कम्स योर थर्ड लॉ, दैट इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ. ये अभी हमने रिसेंटली किया है कैलकुलेशन में, कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो एक फिक्स वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होते हैं, विच इज बेसिकली 6.023 into 10 raised to power 23 particles. ठीक है, तो एवोगाड्रोस लॉ कहता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली जब हम गैस की बात करते हैं, दिस इज फिक्स टू द वॉल्यूम. ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस है, तो 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल ऑफ अ गैस विल ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब. और इस 24 डीएम क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो आपके 6.023 into 10 raised to power 23 होंगे. तो बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स are related to number of moles, and number of moles are related to number of volume. Say, so this is what the Avogadro law states. So it states that equal volume of ideal gases, it can be any gas, it can be hydrogen, it can be carbon dioxide, it can be any gas, ideal gas
contains the same number of moles if measured under the same condition. आरटीपी पे अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, वॉल्यूम जितनी है उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. दिस इज एवोगाड्रोस लॉ. After this, we move on to the fourth law, and that is Guy-Lussick law, right? This says that the pressure of a gas increases as temperature. अब यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रेशर. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो होगी वो इंक्रीज होगी. जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होगी तो दे विल बी बम्पिंग इनटू ईच अदर विद लॉट ऑफ फोर्स, और दे विल बी कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद द फोर्स, और वो फोर्स जिससे वो कोलाइड करते हैं टू द विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज प्रेशर. तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इनका जो है वो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. सो दे से दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो ये गाय-ल्यूसिक्स लॉ है, राइट. अब इन चारों लॉ को जब हम सम अप करते हैं, व्हेन वी कंबाइन ऑल दीज लॉ, ठीक है, तो अगर अगर अच्छा चलो अब इन इन लॉज की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं. तो अगर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर डिफरेंट पॉइंट्स लें, डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करें, तो बिकॉज दिस इज प्रोपोर्शनल, सो विल बी गेटिंग द डायगोनल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो डायगोनल स्ट्रेट लाइन से आप इस गाइस-ल्यूसिक लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि आपके इंडिविजुअल लॉज हैं, आपके बॉयज लॉ हैं, चार्ल्स लॉ हैं, गाइस-ल्यूसिक लॉ हैं, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती है. ठीक है, मूविंग अहेड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं. इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को अगर आप देखें, नाउ प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द ग्राफ, अब किसके किसके बीच में और कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से कर्व क्या आ रहा है, ये आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर, अगर आप एग्जामिनर्स आर ऑफन फॉन्ड ऑफ आस्किंग यू टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द ग्राफ, तो हमेशा हमारे पास नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर जो है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर आपने 1 लिया और वॉल्यूम आपकी ऑटोमेटिकली 10, प्रेशर आपने कम है आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम जाहिर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, और अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई, 5 हो गई. अगर आपने प्रेशर को 5 किया तो वॉल्यूम 2 हो गई, प्रेशर को 10 किया तो वॉल्यूम 1 हो गई. तो दिस बेसिकली दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए के हिसाब से आपका ये कर्व आ रहा है. फिर सेकंड कर्व जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगेंस्ट प्रेशर या अगेंस्ट वॉल्यूम. तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगर होता है, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेशर 1 ले रही हूँ, वॉल्यूम 10 ले रही हूँ, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 10 होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर प्रेशर 2 है और 5 है तो प्रोडक्ट 10 होगा, अगर 5 एंड 2 है प्रेशर एंड वॉल्यूम तो 10 होगा. सो वी कैन सी दैट द P एंड V, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आपका प्रेशर इंक्रीज हो या आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो. तो जब भी एग्जामिनर हमें प्लॉट करके देगा पी वी एंड पी अगेंस्ट पी और अगेंस्ट वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो वो आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी देगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो और उसको अगेंस्ट प्रेशर या वॉल्यूम अगर हमें देखना है तो हमारा ग्राफ जो होगा हमेशा इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ये कुछ कर्व्स आपको याद रखने होंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ इफ यू हैव inversely if you have a relation between pressure and inverse relation of the volume, then we'll be getting a diagonal line. यहाँ पर डेटा देख लीजिएगा, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 10 है और 1/v तो आपका 0.1. तो अब इस प्रेशर के हिसाब से आपका 1/v इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम. अब यहाँ पर ये 1/v की वैल्यू जो है ये आपकी स्ट्रेट डायगोनल लाइन आ रही है. इसी तरह से अगर टेम्परेचर अगेंस्ट वॉल्यूम का आप कर्व बनाएंगे, वे यू हैव अ कांस्टेंट प्रेशर, then again you will be getting a diagonal line, because this is again basically this is again proportional. ठीक है, coming to the next point, अब आते हैं आगे. Let's see what else do we have. Now what they have done, they have combined all these laws together. इन्होंने बॉयल्स लॉ को, गाय-ल्यूसिक लॉ को, चार्ल्स लॉ को आपस में कंबाइन कर लिया. ठीक है, जब इन्होंने आपस में कंबाइन किया
ठीक है, कैन बी कंबाइंड टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन इनके पास आ गई, P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। इस इक्वेशन को, तो इन दिस पर्टिकुलर, ये जो आपका जो आइडियल गैस लॉ, तीनों गैस लॉ को जब कंबाइन करके जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है, ठीक है, जब ये रिलेशन को हम मॉडिफाई करेंगे, तो इसको मॉडिफाई करके हमारे पास गैस, आर स्टैंड्स फॉर मोलर गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू, आर की वैल्यू, ठीक है। अब आर की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट की, वो 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। अब क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है, जब भी आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आप लेंगे एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो गैस कांस्टेंट की, आइडियल गैस का जो कांस्टेंट आर है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स होने का मतलब है कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज, हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, प्रेशर के, वॉल्यूम के और टेम्परेचर का जो रेशियो है, और वो रेशियो भी एक खास स्टैंडर्ड यूनिट में हो। तो प्रेशर हम हमेशा पास्कल में लेते हैं, ठीक है, वी ऑलवेज टेक इन पास्कल, राइट। वॉल्यूम हमेशा हम मीटर क्यूब में लेंगे और टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में लेंगे। अब जब हम इन वैल्यूज को, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को जब हम इन यूनिट्स में लेंगे, तब हमारा जो रेशियो, आपका मोलर गैस कांस्टेंट जो आएगा, उसकी वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल आएगी। अदरवाइज ये वैल्यू वेरी हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम अगर लिखना चाहें, इफ यू वांट टू रीराइट इट, वी कैन आल्सो राइट इट आउट एज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि हमें पता है वी आर टॉकिंग अबाउट एन नंबर ऑफ मोल, एन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम एन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस की बात करें, तो हमारे ये डेरिवेशन, डिराइव फॉर्मूला विल बी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर pressure has to be taken in Pascal, volume has to be taken in meter cube, and R stands for your gas constant, which is 8.31 joules per Kelvin per mole, and temperature is always taken in Kelvin. तो आप इनमें से कोई भी एक अननोन, जो भी वैल्यू जिसकी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इट आउट, तो इन जिस भी, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे किलो पास्कल दिया हुआ है, या आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो आप उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट। तो कोई भी एक क्वांटिटी जो भी अननोन है, हम बाकी की वैल्यूज डालकर उस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस लॉ विच इज नोन एज आइडियल गैस लॉ। एंड आइडियल गैस लॉ वी आर डिराइविंग फ्रॉम 4 डिफरेंट लॉज। वो 4 लॉज क्या है आपके, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-ल्यूसिक लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो इन चारों लॉज को हमने अप्लाई करने के बाद वी गॉट दिस, जब इनको कंबाइन किया, वी गॉट दिस ideal gas law, and ideal gas law is only applicable for ideal gases. Ideal gases जो कि assumptions पे कुछ points उनके जो हैं वो assumptions, और real gases इस law के through आप कुछ calculate नहीं कर सकते। Real gases they do not follow this ideal gas law, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ calculations की तरफ। Let's use this particular formula for different calculations, ठीक है। देखते हैं इसको किस तरह से हम apply करेंगे। Now look here, it says that ideal gas law, or the volume of 1 mole of an ideal gas under standard condition, temperature, pressure has been found. ये वही चीज दे रहे हैं कि आर की वैल्यू, जब आपने यहाँ पर इसकी टेम्परेचर ले लिया, स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली, टेम्परेचर केल्विन में ले लिया, प्रेशर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पास्कल में ले लिया, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो फिक्स आएगी 8.314 जूल्स पर Kelvin per mole, ठीक है। This is what I mean, we always take this value 8.314 joules per Kelvin per mole, ठीक है। We don't take these units, we don't take these units, so हमारे CI के हिसाब से हम ये यूनिट्स लेंगे, ठीक है। केल्विन में टेम्परेचर लेंगे, और हम जो है वॉल्यूम जो है वी विल बी टेकिंग इन मीटर क्यूब, प्रेशर विल बी टेकिंग इन पास्कल, टेम्परेचर वी आर गोइंग टू टेक इन केल्विन, देन ओनली वी विल बी गेटिंग आर की फिक्स वैल्यू विच इज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो हम अपनी कैलकुलेशन पे ये वैल्यू ऑफ आर लेंगे rather than the other values which are mentioned. So this we are not going to take because ये units हम नहीं लेंगे. This we are not going to take because we are not going to take these units. So our value is going to be 8.314 पर जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। हमारी वैल्यूज ये होंगी। अब नाउ ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, द आइडियल गैस लॉ विच इज बेसिकली PV is equal to nRT, P is taken in न्यूटन मीटर स्क्वायर और मीटर और
Pascal. N stands for number of moles of gas, V is taken in meter cube, T is absolute temperature, which is taken in Kelvin, and R is a universal gas constant, which is basically 8.31 joules per Kelvin per mole. ठीक है, अब आते हैं हम कैलकुलेशंस की तरफ. अब यही लॉ, यही आइडियल गैस लॉ जो है, PV इज इक्वल टू NRT. अगर आपको किसी गैस का MR कैलकुलेट करना है, या किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास MR कैलकुलेट करना है, या उसकी आपको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर AR और ओवर MR. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर N की जगह वी राइट डाउन मास ओवर MR, तो दिस मीन्स द सेम थिंग, वी हैव मास ओवर MR और AR. तो अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, MR कैलकुलेट करना है, तो वी कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एज, if we need to find out the MR of that ideal gas, we can write it down as mass multiplied by gas constant, which is 8.31, multiply by the temperature, which is given in the Kelvin, divided by pressure, whatever is given to you, multiply by the volume. So basically PV is equal to NRT. NRT को हमने substitute कर दिया इस formula से, और जब इसको substitute कर दिया, so we have mass over MR, और उसको उस particular formula को rearrange कर दिया in order to calculate the unknown MR. Is it clear? So we have two formulas here. हमारे पास दो formulas हैं. एक formula तो आपका original ideal gas formula है, और एक इसी आइडियल गैस फॉर्मूले में हमने N को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद मास ओवर AR और MR. अगर हमें AR या MR कैलकुलेट करना है, और हमें मोल्स, जो भी मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उससे हम ये भी अननोन वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस फॉर्मूला हैज बीन चेंज इनटू दिस फॉर्म, राइट. अब मैं दोबारा से कनेक्ट हो रही हूँ बिकॉज आई एम लेफ्ट विद लेस than 1 minute